स्टार्ट क्या स्टार्ट किया था। तो ट्रांसमिशन लाइन की जब हम बात कर रहे थे तो अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमें पढ़ना है दैट वाज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, हाउ टू डिटरमिन इट्स परफॉर्मेंस। तो अगर परफॉर्मेंस पढ़ना है तो उसके पहले हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे ट्रांसमिशन लाइन। The first is defined in terms of short transmission line, second है medium transmission line, and third one is your long transmission line. इन तीनों का हम क्या करेंगे, we'll find out its phasor diagram, ठीक है। phasor diagram ड्रॉ करने के बाद we'll find its voltage regulation, what its efficiency, हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे VS का कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, ठीक है। देन कम्स आउट टू बी कि मेरा मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा, मैक्सिमम वोल्टेज का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स अप हियर इज कि हम कैटेगराइज कैसे करेंगे, हाउ विल नो कि व्हाट इज माय शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, व्हिच लाइन आर सेट टू बी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, व्हिच आर सेट टू बी मीडियम एंड व्हिच आर सेट टू बी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मतलब कैटेगराइज की जिस पर्टिकुलर लाइन का लेंथ है कुछ 50 to 80 किलोमीटर, और यू कैन सिंपली से इट इज लेस देन 100 किलोमीटर, तो उस लाइन को हम कैटेगरी में रखेंगे इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन the length is 80 to 200 kilometers, and for more transmission line having length more than 150 or 200 kilometers are known as a long transmission, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एक डेफिनेशन कल हमने पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू योर वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आर एन इम्पॉर्टेंट। So basically when you a transmission line is carrying a current, there is a voltage drop in the line due to what, हमने देखा था कि line resistance होता है, line reactance होता है, तो उस particular resistance and reactance की वजह से जो भी drop होगा that has to be considered. The result is a receiving end voltage VR is generally less than the sending end voltage. VR will be less than your Vs. Why? This is due to the drops that are being occurred due to this resistance and reactance in the circuit. ठीक है। Now this particular the voltage drop Vs minus VR in the line expressed as the percentage of receiving end voltage is known as my voltage regulation. So this particular part is a very important concept to be clear. ठीक है, voltage regulation. Now it is desirable. Just a second, someone is joining the class. Okay, now what is transmission line efficiency, ये important है। ये हाँ जब हम अभी derivation start करेंगे for your short transmission line, तो you will come to know कि what is exactly this voltage regulation, ठीक है। Next important point is transmission efficiency, the power obtained at the receiving end voltage. Please try to come on time, 2 बजे का क्लास बोला था, ठीक है। So the ratio of receiving end power to the sending end power of the transmission line is known as my transmission line efficiency. ये था लास्ट जो हमने कल यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन तक पढ़ा था। ओके, ना शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जब बात करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ योर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज बीइंग नेग्लेक्टेड एज नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल जब हो रहा है तो इट इज यूजुअली नॉट कंसिडर्ड व्हेन यू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। तो क्या कंसिडर होगा, only the resistance and the reactance of the lines are being considered. Okay, so these are few parameters what you have to keep in mind whenever you are studying short transmission line or long transmission or medium transmission line. तो एक है resistance, inductance, capacitance, inductive reactance per phase, capacitive reactance per phase. One is sending and receiving end voltage VS, VR, sending end voltage that is VS. This two things VS and VR, IR and IS are very much important when you study a two-port network जो हमने discuss किया था last class. IS sending end current per phase, IC capacitive current per phase. This is my cos phi r receiving end power factor, cos phi s sending end power factor, and delta that is the angle between sending end and the receiving end voltage. ठीक है, so this particular this ये जो हमने जो कैटेगरीज डाले, ये जो टर्म्स हमने डाले हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू एक्चुअली मॉडल योर शॉर्ट ट्रांसमिशन। नाउ एवरीवन नो कि भाई टू पोर्ट नेटवर्क, जब हमने टू पोर्ट नेटवर्क एवरीवन हैज डिस्कस्ड, तो टू पोर्ट नेटवर्क को अगर मुझे दिखाना था तो ये कुछ नहीं है कि एबीसीडी पैरामीटर्स के साथ हमने टू पोर्ट नेटवर्क को डिफाइन ऐसे कुछ किया था, VSIS A B C D
एंड वी आर आई आर। ये एक सिंपल हमने डाला था। यहाँ पे वी एस एंड आई एस सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड करंट, वी आई आर रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट। ओके, नाउ दिस वाज एन इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्या करना था, वी आर नॉट वी आर एक्चुअली नेग्लेक्टिंग द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जब नेग्लिजिबल हो रहा है कि तो कैपेसिटेंस अगर हम नेग्लिजिबल है तो सर्किट इज गोइंग टू हैव ओनली आर एंड एक्स इन इट्स सर्किट। फाइन। ना हम लोगों ने कल एक लैगिंग लोड कंसीडर करके, ये जो लोड हमने कंसीडर किया था लैगिंग लोड कंसीडर करके व्हाट वी हैड ड्रॉन एक फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। तो उस पर्टिकुलर फेजर में हमने क्या किया, आई आर को रेफरेंस किया, तो व्हाटएवर माय रिसीविंग एंड करंट वाज आई हैड कंसीडर्ड इट एज रेफरेंस पार्ट, उसको लीड करवा के एट एन एंगल ऑफ आई हैव ड्रॉन वी आर। ठीक है। सो एक इक्वेशन जो हमने बनाया था, ये इक्वेशन को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया था। व्हाट इज दैट इक्वेशन, वी एस मुझे अगर चाहिए होगा तो इक्वेशन कैसे प्लॉट करूंगी, तो दिस इज माई वी आर के साथ आ रहा है मेरे पास क्या है, आई आर इंटू आर। तो इन पैरेलल टू माई आई आर आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस आर एंड जे एक्स एल आई आर। तो इस पर्टिकुलर एंगल से एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आई प्लॉट आई आर इंटू जे एक्स एल। तो ये कुछ मुझे वी एस मिल गया था। ठीक है, ये वी एक्स होने के बाद I'll be starting कि भाई हमने जो इक्वेशन को स्टॉप किया था, ये इक्वेशन हमने कुछ यहाँ पे स्टॉप किया था। ये इक्वेशन कौन सा बन रहा था, सिंपल ट्राइंगल ओ सी डी। ओ सी डी ये जो ट्राइंगल है तो उसी के रिलेटेड हमने क्या लिखा, वी रोट ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसी को हमने वहां पे लिखा हुआ। नाउ यू नो कि ओ डी स्क्वायर इज नथिंग बट, ये हमने क्या लिखा था, ओ ई प्लस ई डी, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट वी आर को अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करती हूँ तो इट इज गोइंग टू गिव मी वी आर इनटू cos फाई आर। ठीक है, तो ओ ई का एंगल हो गया cos फाई आर। ई डी, तो ई डी इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर आई आर इंटू आर, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था ना। डी सी, अगर डी सी मुझे लिखना है तो डी सी इज नथिंग बट इट इज डी बी प्लस डी सी, तो ये मेरा डी बी आ गया एंड बी सी। डी बी इज वॉट, तो इस पर्टिकुलर वेक्टर को मतलब वी आर को अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करूँ तो इट इज नथिंग बट वी आर इंटू साइन फाई आर। तो मैंने वही लिखा है वी आर इंटू साइन वाई आर प्लस आई आर इंटू एक्सएल। सो दिस पर्टिकुलर बी सी इज नथिंग बट आई आर इंटू एक्सएल। सो आई एम ओनली राइटिंग दिस इक्वेशन। तो triangle OCD is equals to OC square plus OD square. Should I actually paste it over here? Just a second, मैं उसको वापस पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, so it will be easy for you. Okay, see what we did is this particular triangle, so OC square is equals to OD square plus the sorry, this is DC square ना, sorry ये DC है। ठीक है, now let's actually we'll have to evaluate it. मुझे चाहिए क्या, at the end what I need is I need to find out the voltage regulation. voltage regulation चाहिए होगा, what will be my वी एस सेंडिंग एंड पावर मेरा क्या होगा। तो उस पर्टिकुलर चीज अगर मुझे चाहिए हो, वोल्टेज रेगुलेशन वी एस माइनस वी आर का वैल्यू चाहिए होगा, तो मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो हाउ आर यू गोइंग टू इवैल्यूएट, सिंपल है, ये पूरा स्क्वायर में है तो लेट्स डू सम कैलकुलेशन पार्ट, सम मैथमेटिकल पार्ट विल डू इट। तो वी एस स्क्वायर इज नथिंग बट वी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये क्या होगा, वी आर स्क्वायर है ना, वी आर स्क्वायर cos phi r square plus I r square into r square plus 2, I'll simply write it square plus 2v r I r into r cos phi r. If there is any mistake, please let me know. V r square sin phi r square plus I r square, ठीक है, x square plus 2v r I r x into sin phi r. Is this okay? Is this equation clear? प्लीज रिस्पॉन्ड यार, आप लोग तो ऐसे हाँ, इज इट क्लियर? ठीक है, अभी क्या करेंगे कि यू कैन सी वी आर स्क्वायर एंड दिस वी आर स्क्वायर, तो cos फाइव cos स्क्वायर 5 एंड दिस sin स्क्वायर 5। ठीक है,
प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये स्क्वायर का वैल्यू मैंने 5 की इस पे रिप्रेजेंट किया। cos स्क्वायर 5, ठीक है। ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो आई सिंपली रिप्रेजेंट वी आर स्क्वायर, ठीक है, दिस टर्म एंड दिस टर्म। नेक्स्ट मेरा टर्म कौन सा आ रहा है, यू कैन सी दिस आई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, द नेक्स्ट टर्म दैट इज कमिंग इज 2 वी आर आई आर इंटू आर cos phi r plus 2 वी आर आई आर sin phi r, यहाँ पे x आएगा, ठीक है। So this is my equation that I have been evaluated. Okay, what next, I'll simply take this vr as a common part, so vr ये क्या होगा 1 plus what will be the value, यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करें, इसको हम bs के टर्म में डाल देते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा रेस टू हाफ, ठीक है। अगर मैं इसको कॉमन ले लेती तो क्या होगा 1 प्लस व्हाट विल बी माय वैल्यू, वैल्यू बोलो, कैन एनीवन टेल कि भाई वैल्यू क्या होने वाला है, प्लीज मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन, बस तो इक्वेशन लिखने में भी मजा आएगा। ठीक है, इनटू वी आर, आई कंसिडर दिस एज इन मॉड पार्ट, ठीक है, ये पूरा सब इक्वेशन अभी मॉड में चले जाएंगे मेरे, ठीक है। दिस टर्म प्लस अभी क्या है मेरे पास वी आर, हेलो कौन सा, ये देखो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द होल टर्म इज रेस टू हाफ, ओके। ये मेरा पूरा मैंने यहाँ से स्क्वायर निकाल के दिस इज रेस टू हाफ, तो इसके हिसाब से इट विल बी वी आर, सो योर इट इज स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 आई आर इंटू आर कॉस फाई आर डिवाइडेड बाई इंटू वी आर, ठीक है, प्लस 2 आई आर एक्स sin phi r divided by vr. Now is this particular thing clear? Okay, now एक टर्म हम क्या कर सकते हैं, ये जो हायर ऑर्डर टर्म है, तो कुछ टेलर सीरीज एक्सपेंशन करके ये जो हायर ऑर्डर टर्म जो भी होगा मुझे, तो आई कैन सिंपली निग्लेक्ट दिस टर्म, ठीक है, और एल्स यूजिंग योर बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं घुस रहे, ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करके भी हम इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर टर्म मेरा जो भी होगा मैं उसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर टर्म को एलिमिनेट कर रही हूँ तो व्हाट विल बी माय वीएस विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ वी आर, ठीक है, 1 प्लस ये 1 तो एज इट इज रहेगा, व्हाट आई एम हैविंग इज आई एम सिंपली हैविंग क्या होगा इक्वेशन, बोलिए बोलिए, कैन एनीवन प्लीज डिस्क्राइब कि भाई आगे इक्वेशन क्या जा रहा है। हेलो हेलो, see when I'm taking some binomial theorem and retaining with this first order, ये जो binomial theorem और टेलर एक्सप्रेशन में हम कर रहे हैं ना, तो और टेलर एक्सप्रेशन बेस्ट इज टेलर एग्जाम्पल टेलर सीरीज एक्सपेंशन एंड एक्चुअली डिलीटिंग माय फर्स्ट ऑर्डर थ्योरम, तो उसके बाद मेरा इक्वेशन जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आई आर वॉट एवर इट इज इंटू आर कॉस फाई आर डिवाइडेड बाई वी आर, ठीक है, प्लस this 2 is also getting cancelled out, plus I mod of x, sorry, mod of x into sin phi r divided by vr. So this is nothing but my, ये क्या एक्सप्रेशन आ रहा है अभी मेरा, दिस इज माई सिंपल एक्सप्रेशन,
Now I'll simply multiply this VR into this. So मेरा VS is equals to, first expression is VR plus IR into R cos phi R plus IR x sin phi R. See, so this is my equation coming out to be what? This is up for it. Vs is equals to, above equation is quite accurate for this normal load range. ठीक है, so this is my Vs, ये मेरा VR IR R into cos phi R plus IR X into sin phi R, ये है मेरा simple expression. Now let's calculate, अगर मुझे इसको regulation, ये जो भी equation हमें जो मिल रहा है, this particular equation is nothing for my lagging load. ठीक है, ये अगर मेरा लैगिंग लोड के लिए इक्वेशन बन रहा है. नाउ लेट अस फाइंड आउट कि भाई मैंने कुछ कल हमने क्लास में कुछ रेगुलेशन पार्ट डिफाइन किया था, व्हाट इज माय वोल्टेज रेगुलेशन. तो ये मेरा Vs आ गया था, तो मैं इसको Vs और Vr के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? Vs minus Vr is nothing but IR R into cos phi R plus IR X into sin phi R. ये है मेरा इक्वेशन, कुछ आ गया. वोल्टेज रेगुलेशन का कौन सा न्यूमरेटर पार्ट मुझे मिल गया. So let's get started. What is my percentage regulation? Voltage regulation. ठीक है, so voltage regulation को अगर हम define करने जाए तो under no load condition, तो no load condition में अगर मुझे ये VR dash minus VR divided by VR, this is what under load condition, full load condition. ठीक है, my receiving end voltage under full load condition and this is my receiving end voltage under no load condition. ठीक है, so this multiplied by 100. So this is my percentage regulation part. Okay, now for short transmission line, this for short transmission line, जो भी मेरा no load condition होगा, so VR dash will be equals to VS for no load condition. ठीक है, this is for my no load condition. ठीक है, so when you consider my short transmission line, तो short transmission line में एक चीज याद रखनी है कि this particular VR is nothing but equals to VS. ठीक है, और simply VRL जो हमने यहाँ पे लिखा है, that is nothing but equals to VR. Okay, so percentage regulation जब मुझे अगर लिखना है तो I'll simply write VS minus VR, ठीक है, divided by VR. What is my expression for Vs minus VR? ये मैंने यहाँ पे already derive किया हुआ है, that is equals to I mod of I into R cos phi R plus I into X, IR into X into sin phi R divided by VR. Any problem up till here? Do let me know. ठीक है, this condition is for phi R that is being considered for is considered, ये phi R जो मैंने हमने यहाँ पे लिया है that is actually for lagging load. ये है मेरा lagging load, sorry, ये जो मैंने phi R का हमने वैल्यू यहाँ पे लिया है that is positive, that has considered to be positive. ये positive क्यों आ रहा है? For my lagging load condition. ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस परसेंटेज ये मेरा phi R कब नेगेटिव होगा? फॉर माय लीडिंग लोड कंडीशन. सो परसेंटेज रेगुलेशन अगर मुझे कोई लीडिंग लोड के लिए बताया, क्या होगा? सिंपली इट इज इक्वल्स टू I into R cos phi R minus I into X sin phi R. This is divided by R. So this condition is for my leading load. Is this okay? Is this clear? Okay. Now, zero voltage regulation अगर मुझे निकालना है तो that is only possible in my leading power factor, my leading load condition. तो leading load condition के लिए अगर मुझे अगर voltage regulation क्या होगा? voltage regulation अगर मैं इस particular part के लिए बनाने जा रही हूँ तो वो negative हो जाएगा. Just a second. Someone is trying to do.
ठीक है। तो अगर हम लीडिंग लोड कंडीशन की बात करें तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल इन योर लीडिंग लोड कंडीशन। तो अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करनी है तो इक्वेशन क्या आ रहा है हमारा, जीरो रेगुलेशन की बात अगर मुझे करनी है तो जीरो रेगुलेशन कैसे होगा, दिस जीरो रेगुलेशन, तो ये पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन कम्स आउट टू बी नथिंग बट क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी? बोलिए। आई कैन सिंपली राइट आई आर इंटू कॉस फाई आर, इस वी आर को मैं अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस आई इंटू साइन फाई आर, दिस इज एक्स। ठीक है, ये एक्स आ गया। सो व्हाट विल बी माय टेन फाई, ये आई को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो इट इज नथिंग बट आर कॉस फाई आर माइनस एक्स साइन फाई आर। सो व्हाट विल बी माय टेन फाई आर, टेन फाई आर इज नथिंग बट आर बाई एक्स। सही है कि नहीं है? This is for my, this condition is for my zero voltage regulation. Any problem? कुछ तो बता दो यहाँ पे। Okay, so this is simple for my zero voltage regulation. Right now, अगर मुझे इसी इक्वेशन को पर यूनिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, कौन से इक्वेशन को, लेट्स गेट टू द अपर इक्वेशन, ये वाले पार्ट को अगर पर यूनिट में रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो? एनीवन हैव एनी आइडिया कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन मुझे अगर करना है, बिकॉज ये पूरा सिस्टम हम पर यूनिट पे ही पढ़ने वाले हैं, तो व्हाट विल बी माय इक्वेशन? पर यूनिट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले वो बताओ। चलो पर यूनिट में हम कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन को हम पर यूनिट में कैसे लिख सकते हैं वो थोड़ा बता दो। हम सिंपल यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी, दिस इज व्हाट आई आर इंटू आर। ये जो हमारे पास है ये भी एक टाइप का ड्रॉप ही है, ड्रॉप इन योर सिस्टम, एंड दिस इज ऑल्सो माई ड्रॉप इन दी सिस्टम, है कि नहीं? ये आई आर क्या होगा, ये भी एक ड्रॉप है, एंड ड्रॉप डिवाइडेड बाय ड्रॉप हम इसे कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट इन माई पर यूनिट सिस्टम, सिंपल। तो वो मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन सिंपली राइट, इसको मैं एक सिंपल वी आर के टर्म में, स्मॉल वी आर के टर्म में डाल देती हूँ, तो वी आर इंटू कॉस फाई आर प्लस ये है वी एक्स इंटू साइन फाई आर, ठीक है। सो ये वी आर एंड वी एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी वी एक्स एंड वी आर दोनों को हम क्या बोलेंगे, पर यूनिट ऑफ, पर यूनिट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। पर यूनिट का वैल्यू क्या है, हम पर यूनिट को हमने लास्ट टाइम दिखाया था तो हमने कैसे डिफाइन किया था, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स बेस वैल्यू, है कि नहीं? एम आई कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है अनंता, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? ठीक है ना। एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई मुझे अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए हो तो मुझे वो कैसे मिलेगा, लेट अस डू दैट पार्ट आल्सो। कि अगर मुझे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, यहाँ पे तो हमने ऐसे ही वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला डाल दिया कि लीडिंग लोड के लिए ये है मेरा वोल्टेज रेगुलेशन, एंड फॉर माय लैगिंग लोड ये मेरा कुछ वोल्टेज रेगुलेशन का पार्ट है। सो व्हाट विल बी माय वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा मुझे? तो यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास कौन से क्वांटिटी वेराइंग है, तो आई कैन सिंपली से दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज माय वेराइंग क्वांटिटी। सो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर लेट अस डिफरेंशिएट वी रेगुलेशन, तो ये मेरा परसेंटेज रेगुलेशन का जो इक्वेशन होगा ना उसको को हम लेंगे डिवाइडेड बाय डी फाई आर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये रेगुलेशन वाला जो इक्वेशन है, ठीक है। व्हाट इज दैट इक्वेशन एक्चुअली, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, दैट इक्वेशन इज आई आर आर इनटू, ये इक्वेशन है ना, आई राइट इट फर्स्ट,
इक्वेशन क्या है? दैट इक्वेशन इज नथिंग बट IR into R cos phi R plus IR x into sin phi R divided by VR. ठीक है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है d by d phi R and that is equals to 0. ठीक है, now what does this equation have? कि भाई यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी है? तो cos, तो d by d phi R cos का क्या होगा? माइनस साइन, and what is this? साइन का होगा cos, तो इक्वल ये क्या होगा? माइनस आई आर इंटू आर साइन फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स कॉस फाई आर. ठीक है, इक्वल टू 0. ये वी आर को हमने यहाँ पे 0 डाल दिया. तो व्हाट इज माय इक्वेशन? आई आर आर साइन फाई आर प्लस आई आर एक्स कॉस फाई आर. सॉरी, ये प्लस नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल. ठीक है ना. पाई आर का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या होगा? 10 pi r sin by a, so that is coming out to be x by r. So pi r is nothing but 10 inverse of x by r. So this is my lagging condition, maximum voltage under lagging load condition. This is my maximum voltage regulation under lagging load condition. Is this thing clear up till here? Okay, so लास्ट क्लास हमने क्या देखा था? वी हैड स्टडीड अबाउट टू पोर्ट नेटवर्क. एक हमने पढ़ा था कि टू पोर्ट नेटवर्क, दिस पर्टिकुलर सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू पोर्ट आल्सो. जस्ट अ सेकंड. ओके, लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड कि भाई हाँ, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम टू पोर्ट पैरामीटर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं. तो लेट्स सी कि भाई टू पोर्ट पैरामीटर कैसे कर सकते हैं. सो टू पोर्ट नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 2x2 मैट्रिक्स, जो हमने कल देखा था. हंस एबीसीडी कॉन्सेप्ट है, एबीसीडी कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग टू प्ले, कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसीडी पैरामीटर कमिंग. तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया था? vs इज इक्वल्स टू avr. कुछ ऐसे ही लिखा था हमने, vs is इक्वल्स टू a b c d vr ir. फाइन. तो इसी चीज को हमने वापस इलैबोरेट किया. तो क्या आया कि vs इज इक्वल्स टू avr इंटू प्लस avr प्लस b इंटू ir. is इज इक्वल्स टू cvr प्लस d इंटू ir. ठीक है, ये पॉइंट आ गया मेरा ना. तो ए बी सी डी क्या है? दिस आर माय कांस्टेंट फॉर ट्रांसमिशन नेटवर्क. सपोज हम ये रिसीविंग एंड वोल्टेज को 0 कर देते हैं. ठीक है, तो रिसीविंग एंड को वोल्टेज की अगर 0 करा तो हमारे पास क्या आ रहा है? ए इज इक्वल्स टू वी एस बाई वी आर आ रहा है. ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू मुझे मिल गया. Hence, a voltage impressed at the sending end per volt, at the receiving end per volt, when the receiving end is kept open under my no load condition. I can simply say कि मेरा ये no load condition का बात कर रहा है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है, अगर हम इस पर्टिकुलर रिसीविंग एंड वोल्टेज को 0 कर देते हैं तो व्हाट इज दैट? तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये पूरा टर्म मेरा 0 हो गया. तो vs डिवाइडेड बाय ir इज नथिंग बट d, एंड दिस इंडिकेट्स द इंपेडेंस ऑफ द सिस्टम. v by r हमने अगर लिखना है तो नथिंग बट इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन व्हेन योर रिसीविंग एंड इज एक्चुअली शॉर्ट सर्किटेड. अगर मैं ये टू पोर्ट पैरामीटर्स की बात ऐसे सिंपल से ड्रॉ करूं, तो ये अगर पार्ट मेरा शॉर्ट सर्किटेड है वी आर, तो दैट पार्ट इज नोन एज माय ट्रांसफर इम्पीडेंस. नेक्स्ट इज सी. तो सी को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो नेचुरल है, आई नीड टू एक्चुअली पुट IR इज इक्वल्स टू 0. सी इज द करंट in amperes into the sending end per volt on the open circuited receiving end, and its term as its dimension is admittance. Naturally we actually consider I by V is equals to admittance. सेम थिंग, अगर मुझे डी फाइंड करना है तो मुझे वी आर 0 रखना होगा. तो इट इज नथिंग बट आई एस बाई आई आर. तो उसको हम बोलेंगे इट इज अ डायमेंशनल लास्ट क्वांटिटी. ठीक है ना. ये लास्ट क्लास हमने यहाँ पे ये पूरा चीज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था कि भाई एबीसीडी पैरामीटर्स के साथ हमें इसको कैसे डील करना है. ठीक है ना. ये फेजर डायग्राम किस किस चीज के लिए रखा था हमने कि भाई ये भी हमारे पास लैगिंग लोड के लिए ही रखा था, बट नाउ यहाँ पे हमने वोल्टेज को एज एन रेफरेंस फेजर करके ड्रॉ किया था.
कैन एनीवन जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि भाई मैंने अगर वोल्टेज को एज एन रेफरेंस फेजर लिया है तो ये कैसे इक्वेशन कैसे बन रहा है? हम्म, ओके, हम्म, ठीक है। सो आई गेस दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज क्लियर कि भाई अगर कोई आपको बोले कि लीडिंग लैगिंग लोड पे और यूनिटी पावर फैक्टर लोड पे अगर आपको फेज मतलब फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सपोज आई एम आस्किंग फॉर माय यूनिटी पावर फैक्टर, अगर मैं यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर रही हूँ तो कैन यू पीपल ड्रॉ इट आराम से? बिकॉज यू नो दैट फॉर यूनिटी पावर फैक्टर आपका जो ये फेजर होगा आई आर और आई आर वी आर क्या होगा, दैट विल बी बोथ इन दी सेम फेज, कोई लीडिंग लैगिंग कंपोनेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, कैन यू पीपल इजीली ड्रॉ इट? ओके, ठीक है, ठीक है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, ओके। सो आई एम गिविंग यू अ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ ट्राई करने के लिए। तो एवरीवन इज हैविंग द बुक ऑफ नागराज कोठारी।